Hello friends, welcome to English is Easy with Gaurav. We are going to discuss IELTS writing task 2. If you face the question, discuss both views and give your opinion. How you will attempt that question? What are the important tips? So we will discuss all these important things in this video. Please watch it till the end. So the question is, some people think that art is an essential subject for children at school, while others think it is waste of time. Okay? Discuss both views and give your opinion. So these are two aspects. Art is an essential subject for children at school, but others think it is a wastage of time. So you will discuss both views. In body paragraph 1 you will discuss art is an essential subject for children, how, and in body paragraph 2 you will discuss what others think about this subject and why they say it is a wastage of time. Okay, and in the last you will conclude giving your own opinion that is justified. Okay, so you know that how will we start. So first of all you will write the introduction. This is the introduction part. You will paraphrase the statement. So the question statement is here. सबसे पहले आप इसको paraphrase करोगे. So beginning आपने इस तरह से ही करनी है. It has been a controversial issue for a long time. यहाँ तक कि एक controversial issue रहा है काफ़ी लंबे समय से. ये लिखने के बाद आपने whether art is an important subject for pupils in schools or it can be neglected in the views of other important subjects. ये हमने paraphrasing कर दी statement की. ओके, इफ़ आपको मुश्किल लगता है पैराफ्रेजिंग करना तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, याद रखिए कि इसको आप सिनोनिम्स तो आपने करने होते हैं, सिनोनिम्स वर्ड्स के, और सिनोनिम्स को आप यूज़ करके पैसिव वॉइस में भी आप लिख सकते हो. ओके, इट इज़ थॉट बाय द अदर दैट students waste their time in schools, like that. Okay, then after that ये आपने paraphrasing कर दी. Then I am going to scrutinize on both the aspects in further paragraphs before forming an opinion in the last. Okay, scrutinize means उसको आप अच्छे से निरीक्षण करके, okay, briefly, deeply, minutely डिस्कस करके या फिर सोच कर एनालाइज करके दोनों एस्पेक्ट्स को फिर आप अपनी ओपिनियन दोगे. ऑलराइट, सो जो वाइट कलर में लिखा हुआ है यू कैन सी ये पैराफ्रेजिंग है, और जो ये येलो कलर में आपको शो हो रहा है ये आपने लर्न कर लेना है. ओके, लर्न कर लो, ऐसे आपका जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही इफ़ेक्टिव बन जाएगी और एग्जामिनर को भी ये नहीं लगेगा कि आपने ये पहले से लर्न करके रखी हुई है. बट मेक श्योर योर पैराफ्रेजिंग सेंटेंसेस शुड बी करेक्ट, एररलेस. ओके, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक शुड बी देयर. नाउ इसके बाद बेटा यू विल स्टार्ट योर बॉडी पैराग्राफ 1. सो मैंने पहली वीडियोस में भी आपको बताया है, प्लीज़ अगर मेरी आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हुई जो आइल्स के बारे में है, प्लीज़ वॉच देम थॉरोली. ओके, यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज. सो टू कमेंस विद, स्टार्टिंग आपने ऐसे ही करनी है फर्स्ट पैराग्राफ की, बॉडी पैराग्राफ 1. टू कमेंस विद कॉमा ऑन द वन साइड ऑफ द कॉइन. अब देखो हम एक कॉइन लेकर उसकी दोनों साइड्स की बात कर रहे हैं कि art is an important subject for the students. Okay, this is the one side of the coin.
and the second side of the coin is that people say it is a wastage of time. Okay, so on the one side of the coin, okay, ये आपने यहाँ तक लर्न कर लेनी है ये लाइन. There are many reasons for supporting other important subject in children's school curriculum. ओके तो ये जो वाइट कलर में मैंने जितना भी लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हो, ये आपने खुद से लिखना है. दैट विल बी योर ऑन थिंकिंग ऑन राइटिंग. ओके, यू आर राइटिंग योर ऑन. तो ये आप चेंज करके भी लिख सकते हो, बट ग्रामर शुड बी करेक्ट, सेंटेंस फॉर्मेशन शुड बी करेक्ट. ओके, कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ये नहीं कि सिंपल सिंपल ही आप लिखे जा रहे हो. ऑलराइट, तो चलो, तो बहुत सारे रीजंस हैं अदर सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए स्कूल करिकुलम में. फर्स्टली, modern technology like computer literacy has become the need of the hour. तो सबसे पहले ना हम ये डिस्कस कर रहे हैं उन लोगों के राय जो हैं, ओपिनियन बता रहे हैं जो आर्ट के फेवर में नहीं है. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में हम ये डिस्कस कर रहे हैं जो आर्ट के फेवर में नहीं है. तो वो कह रहे हैं कंप्यूटर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जी आजकल. ओके, सो अदर सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ आर्ट ही बच्चा करे जाएगा तो क्या उसका करियर बनेगा. कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है जी बच्चे के लिए. मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आजकल. ओके, सो इट्स अ नीड ऑफ द आवर, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड स्किल्स फॉर एन जॉब इन एवरी सेक्टर. हर एक सेक्टर में बहुत ज़रूरी है. अगर जॉब लेनी है बच्चे ने तो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए उसको. ओके, आफ्टर दैट वो क्या कह रहा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड स्किल्स फॉर जॉब इन एवरी सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो आपने ना जब रीज़न बताना है तो फर्स्टली से ही स्टार्ट करना है. मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ आपको. फर्स्टली मतलब आप फर्स्ट रीज़न बता रहे हो. ओके, क्यों लोग आर्ट की फेवर में नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट की फेवर में है. फर्स्टली यहाँ का फर्स्ट रीज़न हो गया. आफ्टर दैट फिर उसको आप एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन ज़रूर करना है. ओके, लाइक फिर आप एक्सप्लेनिंग कैसे करोगे, स्टार्टिंग आपने लिखनी है इन अदर वर्ड्स. यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर रहे हो. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड स्किल्स फॉर एवरी जॉब इन एवरी सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल भी देनी है आपने. रिमेंबर दिस. फॉर एग्जाम्पल, द नॉलेज ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट्स लाइक मैथ साइंस हाईली रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड. उसके बाद फिर आपने एज ए रिजल्ट लिख कर, ओके, एक फ्रेज लिखनी है आपने एज ए रिजल्ट. उसके बाद फिर आपने एक्सप्लेनेशन दे देनी है कि इसका क्या नतीजा निकलता है. एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली. ओके, अगले पैराग्राफ में हम चेंज कर देंगे इनको, बट चीज़ यही चलेगी. ओके, एज ए रिजल्ट, इफ दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन लर्निंग आर्ट्स, दे विल नॉट बी एबल टू फेस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स ऑफ दिस सिनेरियो. कि आजकल बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स हैं, मतलब कि गला काट प्रतियोगिता हो रही है हर जगह पर. आप देखें तो बहुत हार्ड कंपटीशन है. बहुत एजुकेटेड बच्चे आए होते हैं, उनका बहुत नॉलेज होती है, वो आगे निकल जाते हैं. सो इसलिए बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. मोरओवर, आर्ट डिस्पाइट बीइंग हाईली अप्रिशिएटेड स्टिल डू नॉट एंश्योर एनी करियर ग्रोथ. ओके, मोरओवर, ये भी आपने कनेक्टर यूज़ करना है. मोरओवर, ओके, कनेक्टर ज़रूर यूज़ करने हैं, सभी याद कर लेनी है. मेरी पहली वीडियोस आप ज़रूर देख लें, मैंने कनेक्टर्स के बारे में बताया हुआ है और इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है वहाँ पर कैसे आपने यूज़ करना है. ओके, आर्ट डिस्पाइट बीइंग हाईली अप्रिशिएटेड स्टिल टू नॉट एंश्योर एनी करियर ग्रोथ. कि आर्ट कहते हैं कि बहुत अप्रिशिएट किया जाता है लेकिन इसकी कोई ग्रोथ नहीं है, आर्ट करियर की कोई इतनी ग्रोथ नहीं है. टू एलेबोरेट इट, अब हम इसको एलेबोरेट कर रहे हैं. ये हमारा सेकंड रीज़न आ गया एक तरह से, आप समझ लो. क्या मोर ओवर, यहाँ पर आप सेकंड रीज़न दे रहे हो.
Most of the fields like engineering, marketing, IT professionals and managers are found graduated, post-graduated in these important subjects. They get better designation in any institution. Okay, फिर इसके बाद आपने एग्जाम्पल देनी है. एग्जाम्पल इज मस्ट. Such educated youngsters are serving in multinational companies and obtaining good salary. Okay, वो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हो कि यहाँ एजुकेटेड यंगस्टर्स को बहुत अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छी जॉब मिल जाती है एंड दे आल्सो गेट गुड सैलरी. हैंस. ओके, वहाँ पर हमने एज ए रिजल्ट यूज़ किया था, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं हैंस. ठीक है. Considering art an prominent subject, prominent means important, is undoubtedly a senseless thought. तो कहते कि इसलिए आर्ट को ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट समझना एक सेंसलेस थॉट है, मतलब एक बेतुकी बात है. ओके, ये पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ 1 हो गया आपका. ओके, यहाँ पर आपने आर्ट के फेवर में बात नहीं की, अदर सब्जेक्ट के फेवर में बात की. ओके, तो आप सब ये याद रख लो जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, टू कमेंस विद ऑन द वन साइड ऑफ द कॉइन, क्योंकि दो ओपिनियंस ही होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना. डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन. तो एक साइड ऐसे हो जाएगी आपकी, फिर ये कनेक्टर आ गया आपका फर्स्टली. ओके, इन अदर वर्ड्स, फर्स्टली में आप रीज़न बता रहे हो, इन अदर वर्ड्स के बाद आप रीज़न को एक्सप्लेन कर रहे हो. For example, you are given an example for this. Then as a result, क्या रिजल्ट निकलता है इसका. ये चार पॉइंट्स जो है ना इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लो अच्छी तरह से. दैन फिर आपने मोर ओवर के बाद सेकंड रीज़न बता दिया, फिर इसको टू एलेबोरेट इट, रीज़न को एक्सप्लेन कर दिया आपने. दैन फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दे दी. देन हेंस एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है. Okay, now we come to body paragraph 2. This is body paragraph 2 on the flip side of the coin. ठीक है, कॉइन के दूसरी साइड पर हम क्या देखते हैं, जो सिक्के का दूसरा पहलू है. आर्ट इज अ क्रिएटिव स्किल दैट हैज़ वंडरफुल इमेजिनेशन पावर. इट प्रोवाइड्स द विंग्स टू द फैंटेसी एंड एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स विदाउट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स. ठीक है, तो आर्टिस्ट होते हैं, they express their feelings through their art, whether it is music, dance, painting, okay, and so on. They just express their feelings. To illustrate, once I came across a painting in which the difference between the plight of the rich and the poor was depicted through painting only. तो इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर आप इसको आप थोड़ा इलिस्ट्रेट कर रहे हो और ज़्यादा. ओके, इसको एक्सप्लेन कर रहे हो इस रीज़न को, कि कहता कि मैं एक बार एक पेंटिंग देखी, उस पेंटिंग में ना एक प्लाइट होती है, जो दुर्दशा होती है, बैड कंडीशन. एक रिच की भी बैड कंडीशन दिखाई गई थी उस पेंटिंग में, और एक पुअर की भी रिच कंडीशन मतलब बैड कंडीशन दिखाई हुई थी, रिच की और पुअर की बैड कंडीशन. ओके, तो पेंटिंग में, एक ही पेंटिंग में ये सब दिखाया हुआ था. मोरओवर, ठीक है, इसको और ज़्यादा, इसके अब सेकंड रीज़न आ गया आपका मोरओवर. ठीक है, म्यूजिक इज अ पीस ऑफ आर्ट एंड वर्क्स एज अ हीलिंग थेरेपी इनटू द हेक्टिक वर्ल्ड. म्यूजिक देखो एक आर्ट है और ये एक हीलिंग थेरेपी है. इस हेक्टिक वर्ल्ड में देखो हम कितना थक हार जाते हैं, थ्रू आउट द डे हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं. सो we are very much dead tired, exhausted in the evening time, so we need some relaxation. We listen our favorite music, whether it is Punjabi, Hindi, English, any music, classical, okay, according to our feeling. It gives us relaxation. तो इसलिए ये healing therapy है music. Secondly, artists bring laurels for the country across the world. So कई लोग तो आर्टिस्ट हैं, हाँ, ये कंट्री के लिए लॉरियल्स लेके आते हैं. लॉरियल्स होता है ऑनर, रिस्पेक्ट. ओके, तो आर्टिस्ट क्या करते हैं, जब थक हार जाते हैं, कई लोग के चलो मन करता है पेंटिंग कर लें, म्यूजिक अपना प्ले कर लें, है ना.
and ensure that the cultural heritage of the country may not extinct। तो ऐसे क्या होता है, उनका जो कल्चरल हेरिटेज है, जो उनकी विरासत है, जो उनको कल्चर से मिली हुई है अपने इंडिया से, वो एक्सटिंक्ट नहीं होती, मतलब ख़त्म नहीं होती, वो बरकरार रहती है। टू एपिटोमिट, यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे रहे हो। टू एपिटोमिट मीन्स फॉर एग्जाम्पल। सो आपको पता ही है कि आइल्स में वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि सेम वर्ड्स बार बार यूज़ करना मीन्स आपके बैंड को घटाना। आपके बैंड्स उतने ही कम आएंगे अगर आप रेपिटेशन करोगे सिमिलर वर्ड्स के अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आपने ये सारे जो है लर्न कर लेने हैं। कुछ वीडियोस मैंने डाली हुई हैं इसकी ही सिनोनिम्स की, जो आप यूज़ करते हो आइल्स में, जो कॉमन है, जो यूज़ होने वाले हैं, उनको आप लर्न कर लें, देख लें वीडियोस एंड लर्न देम। आर्टिस्ट, टू एपिटोमिट आर्टिस्ट आर हाईली पेड एंड अप्रिशिएटेड। सो कहते हैं कि हाँ, आर्ट में देखो जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, चाहे वो पेंटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है एंड उनको कई बारी हाई प्राइजेस भी दिए जाते हैं, मतलब मनी भी दी जाती है, अवार्ड्स भी दिए जाते हैं उनको। दस, ठीक है, एज ए रिजल्ट, ओके, thus that kind of respect is not less than a flourished career। तो कहते इस तरह की जो रिस्पेक्ट है, एक फ्लॉरिश्ड करियर, एक बहुत अच्छा जो फ्लॉरिश्ड करियर है, सक्सेसफुल करियर है, उससे कम नहीं है। ये आर्ट का अपनी इम्पोर्टेंस है। आर्ट में भी अगर लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और वर्क हार्ड करते हैं, देखिए आर्ट बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड मांगता है हमसे। चाहे आप आर्ट की फील्ड में जा रहे हो ना, तो कंपटीशन भी है, और हार्ड वर्किंग पीपल जो है ना, वही आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लॉरिश्ड करियर बन सकता है आपके लिए। ओके, तो ये हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 हो गया। बॉडी पैराग्राफ 2 के बाद अब आपने अपनी ओपिनियन बतानी है कि व्हाट डू यू थिंक, डिस्कस बोथ व्यूज। अब बोथ व्यूज डिस्कस हो गए हमारे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू गिव आवर ओपिनियन। अब मेरी क्या ओपिनियन है ये देखिए। टू कंक्लूड, ऐसे आपने स्टार्टिंग कर लेनी है, कॉमा लगा दो। इन माई व्यू द सिलेक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट्स शुड बी लेफ्ट ऑन द स्टूडेंट्स। चलो जी, बात ही खत्म हो गई। सो कहते कि मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या कहता हूँ उसके बारे में, मैंने बात ही ख़त्म कर दी कि सब्जेक्ट की सिलेक्शन स्टूडेंट्स पर ही छोड़ दो। अब उनकी चॉइस भी तो देखो ना, वो बच्चे क्या चाहते हैं, in which they are interested, जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, because that very interest help them to grow in their life। क्योंकि देखो, अगर बच्चा किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है, आप आर्ट में इंटरेस्टेड है, आप उसे इंजीनियरिंग लाइन में धकेल रहे हो, नहीं, या डॉक्टरी लाइन में आप उसको धकेल रहे हो, सो ही कांट बी सक्सेसफुल। ओके, तो ऐसे ही है वाइस वर्सा, कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसको कह रहे हो नहीं तू पेंटर बन जा, नहीं भी तू तो सिंगर बन। नो, एक हॉबी हो सकता है बंदे का कि कोई डॉक्टर है तो वो पेंटिंग कर रहा है या सितार बजा रहा है, दैट इज़ हिज हॉबी। बट प्रोफेशनली, ठीक है, उस बच्चे को आप फोर्स ना करें कि तू यही करियर चूज़ कर, तू यही बन। ठीक है, तो एक कंक्लूजन हमारा यही बता रहा है। And in conclusion you will write just only 1 sentence or 2 sentences। okay, उसके बाद फिर finish your IELTS task 2 is complete। okay, so in my view the selections of a subject should be left on the students in which they are interested, because that very interest help them to grow in their life। so मेरी ओपिनियन क्या है मेरे अकॉर्डिंगली, कि अगर किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट चूज़ करना है, अपना करियर चूज़ करना है, ओके, तो उसको ही ये उस पर ही छोड़ दो, लीव इट ऑन हिम, ही कैन चूज़ एनी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, एनी करियर अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, तो क्या, ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल माई वीडियोज़। देखिए, मैं इतनी ज़्यादा आइल्स के भी वीडियो बना नहीं पाया हूँ, I was not well, so in future I will try to make more videos। स्पीकिंग की भी बनाऊँगा आपके लिए वीडियो। ठीक है, please keep watching my videos, support me and subscribe my channel। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।